Yeah. Yeah. Why don't we just turn our focus to the Lord? आइए क्यों ना हम हमारे ध्यान को यीशु की ओर लगाएं And yeah, just ask the Lord to speak to us. और परमेश्वर से बोले आपसे बात करने के लिए। We've been learning about how to hear the voice of God. और हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है इसके बारे में सीख रहे थे। The Lord wants to speak to us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बात करे। And so let's ask Him to speak to us today. तो आइए उसको पूछे कि हमसे बात करे आज। And whatever He's speaking, to our hearts, let's receive it in our hearts. और जो कुछ भी हमसे बात कर रहा है हमारे हृदय में, उसे अपने हृदय में प्राप्त करें। Yeah, let's begin to pray. आइए प्रार्थना करना शुरू करें। Just begin to pray in the Spirit, pray in tongues. आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। Just between you and the Lord. Pray. और आपके और परमेश्वर के बीच में केवल। And may the Lord prepare our hearts today. और आज परमेश्वर हमारे हृदयों को तैयार करे। And make us willing and able to receive His word. और उसके वचन को प्राप्त करने के लिए इच्छुक और हमें योग्य बनाए। May the Lord strengthen us this afternoon. और इस दोपहर के समय परमेश्वर हमें बल दे। May the Lord sharpen us in our spirit. और परमेश्वर हमारी आत्माओं में हमें तेज बनाए। And may the Lord increase our capacity to learn. और हमारे जो सीखने की क्षमता है परमेश्वर उसे बढ़ाए। Yeah. So you talk to the Lord. तो आप परमेश्वर से बात करें। Just for another 2 minutes, just talk to the Lord. और 2 मिनट के लिए उससे बात करें। Speak to us, God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you for restoring, for rebuilding, thank you for bringing me back. Yes, Lord. I know that this is going to be the season. God, write your word upon my heart. Write your word upon my hearts, Father. Let there be a shift. Let there be a change, God, in the spirit, Master. Yes, Lord, I pray that all kinds of weariness be removed far away. Yes, Father God. Yes, Lord. Yeah, shall we just ask the Lord to cleanse all the unnecessary things from our hearts and minds? और परमेश्वर से मांगे, उससे पूछे हमारे जीवनों में जो बिना जरूरत की चीजें उन्हें हमारे मनों से शुद्ध और साफ करने के लिए। Sometimes we think it's necessary. और कई बार जो हम सोचते हैं कि जरूरी है, but we need to look at it the way the Lord sees it. लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर उसे देखता है हमें उस तरीके से देखने की जरूरत है। And if He says that something is not required, it's unnecessary. और यदि वो कुछ कहता है कि ये जरूरी नहीं है या वो महत्वपूर्ण नहीं है, or if something slows us down in our walk with God, और जो हमारे परमेश्वर के साथ चाल चलन में हमें धीमा करता है, then we don't have any right to hold on to it. तो उसको पकड़े रहने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। So let's ask the Lord to cleanse us of those तो आइए things. परमेश्वर से मांगे हमें उन सब चीजों से, बातों से शुद्ध करने के लिए। Yeah, let's pray and ask the Lord to do आइए that. प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे। Yes, Father God. Enable us to be strong in the spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord. Jesus. Yes, Lord. Rewrite, rescript. Restore, realign, Jesus. Renew, God. Father, we thank you for this afternoon time. पिता, हम इस दोपहर के समय के लिए धन्यवाद देते Lord, हैं। even as we commit ourselves into your mighty hands, और Lord, जैसे हम खुद को परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, Lord, we want to say that we are willing, oh Father God. और परमेश्वर हम ये कहना चाहते हैं कि हम इच्छुक हैं। Yeah, willing to be led by you, Lord. हम पिता आपके द्वारा हम इच्छुक हैं। Willing to be strengthened by you, Lord. और परमेश्वर हम आपके द्वारा बल पाने के लिए इच्छुक हैं। Yes, Father God. So pour out your spirit upon us, और Lord. हाँ परमेश्वर, आपकी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलें। And make us ready to receive your rain, Lord. और हमें आपकी उस बारिश को पिता पाने के लिए The तैयार rain of your करें। presence, the rain of your word. आपकी उपस्थिति की बारिश और आपके शब्दों की बारिश। We thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। We give you all the praise and glory. और पिता हम सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. और यीशु के शानदार नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Please be seated. कृपया बैठ जाइए। Okay. Whatever we are learning today, और जो कुछ भी आज हम सीख रहे हैं, or whatever we have learned till now, और जो कुछ भी अब तक सीखा हुआ है, we're looking at it from the point of God's word.
right? और हम उसे जो परमेश्वर का वचन है उसके आधार पर करके देख रहे हैं, Because we need to believe the right things, क्योंकि हमें जो है सही चीजों पे, सही बातों पे विश्वास करने की जरूरत है। and the word of God enables us to believe the right things. और परमेश्वर का जो वचन है हमें हिम्मत देता है सही बातों पे विश्वास करने के लिए, Because when we believe rightly, we will live in the right manner. क्योंकि जब हम सही चीजों पे, सही बातों पे विश्वास करेंगे तो हम सही तरीके से जिएंगे भी। But if we believe in a wrong manner, और लेकिन यदि हम गलत तरीकों में जो विश्वास करेंगे, like for example, उदाहरण के लिए many years ago, कई साल पहले everyone believed that the world was flat. और सब कोई है ये विश्वास करता था कि जो धरती है पूरा समतल थी। They believed that, okay, if you travel far, you will fall off the edge. और ये विश्वास करते थे कि यदि दूर जाके कहीं तक यात्रा करेंगे तो फिर आज जो वहां के किनारे हैं वहां से गिर जाएंगे। Now that was a wrong belief, तो वो गलत विश्वास था। right? So it changed the way they looked at the world. तो वो जिस तरीके से संसार को देखते थे वो तरीका उनका बदला। In the same way, और उसी तरीके से if we believe wrongly, यदि हम गलत विश्वास करेंगे, it will change the way we live our life. और जिस तरीके से हम जीते हैं हमारे जीवन को, वो तरीका बदल जाएगा। Our lifestyle changes. और हमारे जो पूरा जीवन शैली है बदल जाता है। And that's why right at the beginning, we looked at that whole subject of in Christ. और इसीलिए शुरुआत में ही जो मसीह में वो विषय करके था उसे हमने देखा, Because we needed to see ourselves the way Christ sees us. क्योंकि हमें खुद को उस तरीके से देखने की जरूरत थी जिस तरीके से मसीह देखता है। So that changes the way we look at God. और वो हमारा उस तरीके को बदलता है कि हम कैसे परमेश्वर को देखते हैं। It changes the way we look at the evil spirits, powers of darkness. और जो है जो दुष्ट आत्मा है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, उनको हम देखते हैं, वो तरीका बदलता है। And it changes the way we look at ourselves. और जिस तरीके से हम खुद को देखते हैं वो तरीका भी बदलता है। Right? And so that changes the way we live our life. और तो हमारे जीवन को हम जिस तरीके से जीते हैं पूरा तरीका बदलता है। We live a life in much more confidence, और हमारा जो जीवन है हम और ज्यादा आत्मविश्वास में जीते with हैं, much more joy, और ज्यादा आनंद में, because you know that who you are in Christ, क्योंकि आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, that you are a new creation, कि आप नई सृष्टि हैं। right? You're no more a person who's dictated by the past. और आप अब वो व्यक्ति नहीं है जो आपके पुराने समय के द्वारा आपको पहचाना गया हो। So you don't have to live your life based on the past. तो आपका जो पुराना समय था उसके आधार पे आपको जीवन जीने की जरूरत नहीं है। We don't have to live our present based on our past disappointments. और हमारा जो अभी का वर्तमान का समय हमारे पुराने बीते गए समय के अनुसार उसके आधार पे हमें नहीं जीना है। So in the same way, we need to believe rightly. और तो उसी तरीके से जो हमें सही बातों पे विश्वास करने की जरूरत If है। you look at all the subjects that you've learned, और यदि आप सारे जो विषय आपने सीखे उनको देखें, we want to believe the right things about the Holy Spirit. और आप जो पवित्र आत्मा के बारे में सही चीजों का विश्वास करना चाहते हैं, We want to believe the right things about the gifts of the Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हम सही चीजों पे विश्वास करना चाहते हैं, We want to believe the right things about what faith is. और विश्वास क्या है उसके बारे में सही बातों पे विश्वास करना चाहते हैं। So that is what we've been doing all और along. वही जो हम कर रहे हैं अब तक, And so also in this last few days, और इन आखिरी दिनों में भी उसी तरह we want to believe the right things when it comes to finances or money. और जब ये बात पैसे के बारे में, धन संपत्ति के बारे में होती है, तब भी हमें सही बातों पे विश्वास करना चाहते Okay. हैं। We want to believe the right things हम सही विश्वास करना चाहते हैं, because only then we will be able to live rightly and please God. क्योंकि तभी जो हम सही तरीके से जीने के योग्य होंगे। Okay, so that is what we are calling. We are going to look at the first chapter, और तो पहला जो अध्याय है हम वही देखने वाले हैं इसमें, the right attitude, और सही रवैया, the right thoughts सही विचार, when it comes to money. जब ये बात धन के बारे में होती है तो। Okay, so I want to ask one question. तो हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे, How many of you think money is good? आप में से कितना लोग सोचते हैं कि जो धन पैसा है वो अच्छा है? Okay, hand right up. हाथ ऊपर करने हैं। Okay, how many of you think money is bad? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि पैसा जो है बेकार है? Okay, okay, okay. How many of you think that it's both good and bad? और आप में से दोनों, कैसे लोग सोचते हैं कि दोनों है, वो सही भी है गलत भी है? Yeah. Okay. So the thing is, what we believe about money
लेकिन जो हम विश्वास करते हैं पैसे के बारे में, is going to change the way we handle money. और वो जिस तरीके से हम हमारे पैसों को हम संभालते हैं वो तरीका बदलेगा उससे। It's going to change the way we spend. और जिस तरीके से हम खर्च करते हैं वो तरीका बदलेगा। It's going to change the way we earn. और जिस तरीके से हम उसे कमाते हैं वो तरीका बदलेगा। It's going to change all that. अब वो सब बदलने वाला And where है। does it start? और ये कहाँ से शुरू होता है? What we believe about money. और जो हम पैसों के बारे में विश्वास करते हैं। Right? So how many of you think that God wants us to have lots of money? और आप में से कितना लोग सोचते हैं कि परमेश्वर चाहता है हमारे पास बहुत धन हो? Okay. Good. Honestly. Yeah. ईमानदारी So how many से। of you think God does not want us to have money? और आप में से कितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास धन या पैसा हो? Okay. So which means most of you are not sure. तो इसका मतलब आप में से अधिकतर लोग हैं वो पूरे निश्चित नहीं हैं Whether God wants you to have money or not. कि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास पैसा हो या नहीं। But you didn't raise your hands. Right? Okay. So our attitude about money matters. और तो जो हमारा रवैया है धन के प्रति वो बहुत ही मायने रखता है। Right? It's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। And our attitude about money comes from our experience about money. और जो हमारा रवैया है धन के प्रति वो हमारे अनुभव के द्वारा आता है। Right from the childhood. और बचपन से ही। Okay. When was the first time you got to spend money? Just think about it. और इस बारे में सोचे कि वो पहला बार कौन सा समय था जब आपको पैसे खर्च कर पाए थे आप The लोग? very first time. सबसे पहली बार। Maybe you were very small. शायद आप बहुत ही छोटे होंगे। And maybe you had some money in your hand and you got to spend it. आपके हाथों में कुछ पैसा होगा और आपने उसे खर्च कर पाया। Okay. Does anyone remember that? तो क्या किसी को वो याद है? Okay. Okay. Does anyone like to share how it happened? कोई बताना चाहेगा कि ये कैसे हुआ? What you bought with that money? उस पैसे से आपने क्या खरीदा? Okay. Just put your hand up. I'll ask. Okay. अपने हाथ Maybe you can खड़े कर share. सकते हैं। Maybe you can share. You can share the mic. Yeah. Yeah. After that, you can share. Oh, yeah. Yeah. I think I was in 5th grade, and the first time I spent was I bought masala dosa. Okay. Yeah. So who gave you the money? My dad. Huh? Dad. Okay. Your dad gave you the money, and the first time you spent the money was for masala dosa, and you went all alone and spent it Yeah, while coming from school, from school. Okay. तो इन्होंने जो है पहली बार जो पैसा Yeah. खर्च किया था इनके पिता ने दिया इनको, तो मसाला डोसा खरीदने के लिए इन्होंने वो पैसा खर्च किया था। Okay. She was in 5th standard. और वो 5वीं क्लास में थी। Yes. मैं मेरा ब्रदर को दिया पहले बार पैसा पूरा। What did you सॉरी, मैं ब्रदर मेरा भाई को दिया। आपके भाई ने दिया। say? Okay. Okay. Then. तो क्या खर्च किया आपने उससे? वो किसको खर्च किया मेरे को नहीं मालूम। हाँ? वो क्या करा कि नहीं मालूम, उसको दे दिया मैं। Oh, he gave to his brother. I see. So, So who he gave doesn't to know. him? Who gave to him? आपको कहाँ से मिला? मैं फर्स्ट सैलरी मेरा। फर्स्ट साल। Salary. Okay. ठीक है. No, before that, when you were small, हाँ, did you spend money? उससे पहले जब आप छोटे थे तो आपने पैसा खर्च किया था? खर्च किया था मगर सिनेमा को गया पहले। Right. You went Movie. for a cinema. we see the movie, after that eating, After that eating. After that food, अच्छा. ठीक है. Right. total enough, finish, Okay. खत्म Good. आई। Good. Thank you. तो Yeah. सर chocolates. Okay. How old were you, brother? Okay. क्लास 2 और 1। Class 2, class 1. Okay. So you used it. तो आपने उसका इस्तेमाल किया It was useful. और वो लाभदायक था, You got something, आपको उससे कुछ मिला and you grew up from there. और आप वहां से जो बड़े हुए। And our idea about money kept changing. और हमारा जो विचार है पैसों के बारे में, धन के बारे में, वो बदलता रहा। Some people said, "Hey, we need to get lots of money. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मैं बहुत सारा पैसा पाने की जरूरत है। Money is the most important thing." और पैसा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। You would have heard that. आपने सुना भी होगा। So you must have thought, maybe they are correct. तो आपने शायद सोचा भी होगा कि हाँ शायद वो ठीक है। And some people would have said, money is not everything.
और कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। right? What are all the rich people having? What are all the rich people having? और जो सारे धनी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है? They don't have peace of mind. उनके अंदर में शांति नहीं है, So money is a waste. तो पैसा जो है व्यर्थ है। So all these ideas people would have shared. तो ये सारे जो विचार हैं लोगों ने हमारे साथ साझा किए होंगे। And you would have also heard in the church, और आपने कलीसिया में ये भी सुना होगा this money is very evil. और कि पैसा जो है ये बहुत बुराई का है, बुरा है। Money can destroy your life. और जो पैसा है आपके जीवन को बर्बाद कर सकता Have है, nothing to do with money. और पैसों से कुछ नहीं करना है। You would have heard something like that. आपने कुछ ऐसा भी सुना होगा। And right after saying that, और वही कहने के बाद they must have said, now bring your offering to the church. और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ कि अपने दानों को आपकी कलीसिया में लेके आए। Then you're thinking, hey, what is this? तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, Money is evil, और जो पैसा है बुरा है, but I'm giving it to the work of God. लेकिन मैं परमेश्वर के कार्य के लिए उसे दे रहा So हूँ। we're all confused, तो हम सब जो उलझन में हैं। right? So if I'm called to ministry, और यदि हम जो है सेवकाई में बुलाए गए हैं, what should my idea be, perspective be about money? और पैसों के बारे में तो हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? We need to have the right things, हमें सही रवैया वहां पे होना because that चाहिए, will help us to handle money correctly, और वो हमें मदद करेगा कि हमारे पैसों को हम अच्छी तरीके से संभाल सकें। right? Otherwise, और money नहीं- will have a hold on us. और नहीं तो पैसे की पकड़ जो है हमारे ऊपर होगी, Rather than we holding money, और हम उसे पकड़ने की बजाय, उस पे पकड़ रखने की बजाय money will have a hold on us. पैसे की पकड़ हमारे ऊपर होगी। Okay, one more question. और एक और प्रश्न, Do we need money for ministry? क्या हमें पैसे की जरूरत है सेवकाई के लिए? Yes. How much money do we need? कितना पैसा जरूरत है? What? Say? As much as the work is getting Yeah. done. As much as the work is required, right? So every day तो हर दिन we need money to live. हमें जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। What are some daily expenses? तो हर दिन में होने वाले खर्च क्या होते हैं? What are some monthly expenses? कुछ महीने में होने वाले खर्च क्या होते हैं? Right? If you're living in a rented house, you need to pay rent. और यदि किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहाँ पे किराया देने की जरूरत है। And if you rented a church hall, you need to pay rent. और यदि खलीसिया के लिए है, जगह को किराए पे लिया तो उसका किराया देने की जरूरत है। To put food on the table, we need money. और मेज पे खाना रखने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। To pay the electricity bill, we need money. और बिजली का बिल देने के लिए पैसों की जरूरत है। If you want to do an outreach, और यदि कोई आउटरीच करना चाहते and हैं, if you want to print some tracts, और यदि कुछ फ्लायर्स करके जो उन्हें प्रिंट कराना चाहते हैं, and if you're organizing a meeting, और यदि एक सभा के लिए आप वहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, and if you want to put some tent, और यदि वहाँ पे कुछ आप टेंट लगाना चाहते हैं, we need money, पैसों की जरूरत है। right? So we cannot say I'm in ministry and I don't want money. तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं सेवकाई में हूँ और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। We need money. हमें पैसों की जरूरत है, But the question is, how should we treat money? लेकिन सवाल ये है कि कैसे हमें जो है पैसों को संभालना चाहिए। Because the Lord Jesus, we see in his parables, he has spoken a lot about money, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो अपने दृष्टांतों में कई बार जो है पैसों के बारे में बात की है। right? And we will do well to learn and understand what is the Lord saying. और हम इस बात को अच्छे से समझेंगे कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं। Because if we have the right idea, it will free us up to live the right kind of life. और यदि हमारे पास सही विचार, सही तरीका है तो हमें सही तरीके से जीने में हमें मदद करेगा। Maybe some of us are called to live or called to be in business. और शायद हम में से कुछ लोग हैं व्यापार के क्षेत्र में करके बुलाए गए होंगे, Maybe some of us are called to work as working professionals in और शायद कुछ corporates. लोग जो है कार्य के स्थल पे करके बुलाए गए होंगे, And maybe some of us are called to plant churches और and शायद go हम on में से missions. कुछ लोग जो है मिशन पे जाने के लिए, कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए बुलाए गए होंगे। Now, the one who is called to run a business और जो व्यापार के लिए बुलाया गया है, should not think that, hey, I'm a second-class citizen in the kingdom of God. और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरे स्तर का नागरिक हूँ राज्य में। The one who is called to plant churches और जो कलीसिया की स्थापना करने के लिए बुलाया गया है, should not think, hey, I am superior to all the others. और उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो है सबसे बढ़कर हूँ, सबसे बढ़कर। This is only the very spiritual thing. और यही केवल सबसे आत्मिक चीज है।
Right? All those who are working and doing business, they are not spiritual. और जो काम कर रहे हैं या व्यापार में है वो आत्मिक नहीं है। We should not think that way. हमें उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। We should have the right attitude about money. और धन के बारे में जो हमारा सही रवैया होना चाहिए। Okay? So that is what we are looking at. What is our attitude about money? और तो वही हमें देखना है हमारा रवैया क्या है। Okay, we are going to look at many verses, scripture. So have your Bibles open. तो अपनी बाइबलों को आप खुला रखिए कि हम जो बहुत सारे वचनों को देखने वाले हैं। The notes also have a lot of scriptures. और हिंदी में भी रेफरेंस दिए गए हैं पर वचन नहीं है उधर। Oh, is it? Okay. So you can look at the reference, no? Reference is there? Okay. Okay, let's look at the first reference, which is Psalm 35 and verse 27. और पहला वचन हम निकालेंगे भजन संहिता 35 वचन 27। It says, "Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant." और ये वचन कहता है कि जो मेरे धर्म से प्रसन्न हो रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास से कुशल से प्रसन्न होता है। Okay, so how is it translated? Is it prosperity or they are lifted up? संपन्नता, समृद्धि, Which means? प्रॉस्पेरिटी। Prosperity. Okay, enriched. Right. Okay, so what does this verse tell us? और तो ये वचन हमें क्या बताता है? Okay, it says, "Let the Lord be magnified." और कि परमेश्वर है उसकी बड़ाई हो। Right. So the psalmist is praising God, और जो भजनकार है वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। and he's saying that the Lord actually has pleasure. और वो कह रहा है कि परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है, He's happy. वो खुश है He's more than happy. और वो खुश है कई गुना बढ़ के है। Let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. और ये कहता है कि यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। Many times we think, will God be okay if I become rich? और कई बार जो हम सोचते हैं क्या परमेश्वर ठीक मुझे समझेगा कि यदि हम जो धनी हो जाएं तो? Will God be okay, as a pastor or as a full-time minister if I get money? और पूरी प्रकार की सेवकाई में जो हूँ पासवान अगुवा करके, तो यदि मेरे पास पैसा है तो क्या परमेश्वर ठीक रहेगा? Or will God be happy if I remain poor throughout my life? और क्या परमेश्वर खुश होगा कि यदि मेरे पूरे जीवन भर में जो है मैं गरीब निर्धन बना रहूं? What does this verse tell us? तो ये वचन हमें क्या बता रहा है? The Lord takes pleasure. और परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। He has pleasure, which means he is happy इसका मतलब वो खुश है when his servants prosper. और जब उसके दास जो है वो अच्छा कुशल Right. करते हैं, अच्छे से बढ़ते हैं। That word prosperity, we're going to learn a little more about it. और जो शब्द वहाँ पे दिया है कुशल यानी कि समृद्धि, उसके बारे में हम और सीखेंगे। It is not just money. और वो केवल पैसे के बारे में ही नहीं है। Right? It's prosperity in all ways. और कुशलता यानी कि संपन्नता हर एक बात में। It refers to health. और वो हमारे स्वास्थ्य को भी बताता है। It refers to prosperity of our soul, our thoughts. हमारा जो विचार है, हमारा प्राण है, उसकी संपन्नता के बारे में बताता है। Right? It talks about doing well in all areas of our lives. और वो इस बारे में बात करता है कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अच्छे तरीके से रहना। So the Lord has pleasure. और तो परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है If you do well in life, यदि आप आपके जीवन में अच्छा करें right? तो। If you succeed in life, और यदि आपके जीवन में आप सफल हो तो He's happy. वो खुश है। Now we need to get that in our hearts. तो हमें जो हमारे मन में इसे रखने की जरूरत है। Now why is He happy? तो क्यों खुश है वो? If you are a parent, you will understand. और यदि आप माता पिता या अभिभावक बनेंगे तो आप इसे समझ Right. पाएंगे। If you have your own children, और यदि आपके खुद के बच्चे होंगे, you want your children to do well. आपके बच्चों को आप चाहेंगे कि वो अच्छा करें। Right? You might be, you may not be the perfect parent. और हो सकता है कि आप सिद्ध माता पिता ना हो, Even with all your character flaws, और आपके जो चरित्र की सारी गलतियां हैं उनके बावजूद भी in your heart, आपके हृदय में you want your child to do well. आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा करें। And who is God? और परमेश्वर कौन है? Is He not our heavenly Father? क्या वो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं है? Right? He is our heavenly Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है। And He is happy when we do well. और जब हम अच्छा करते हैं, हम बढ़ोतरी करते हैं, तो वो खुश होता है। Right? He takes pleasure
when we do well in all areas. और जब हमारे हर एक क्षेत्र में जो हम अच्छा करते हैं तो वो खुश होता है। Okay, let's look at one more verse. आइए एक और वचन देखें। Deuteronomy chapter 8 and verse 18. व्यवस्था विवरण 8 वचन 18। Okay? And it says here, you shall remember the Lord your God. और कहता है कि परंतु अब तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, Right? For it is he who gives you the power to get wealth. और वो कहता है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, That he may establish his covenant, which he swore to your fathers, as it is this day. इसीलिए देता है कि जो वचन उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे। So this is how God sees us. और तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर हमें देखता है। And it says here, he gives us the power. और वो कहता है कि हमें वो सामर्थ देता है, He gives us the ability. वो हमें योग्यता देता है। What kind of ability is he giving us? किस प्रकार की योग्यता हमें दे रहा है? What does it say here? यहाँ पे वचन क्या कहता है? He gives us the ability to, to get wealth. How do you say that in Hindi? Hindi में क्या है? हिंदी में कैसे कहते हैं? Right? He's giving us the ability, which means he's giving us the wisdom. He's वो- giving us the strength. वो हमें योग्यताएं दे रहा है, इसका मतलब हमें बल दे रहा है, हमें बुद्धि दे रहा है, He gives us. वो हमें देता है। Right? Maybe you're doing some work. कि शायद आप कोई काम कर रहे हो, Okay. For example, maybe you're working as a teacher. उदाहरण के लिए आप किसी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हो, Maybe you're working in some government office. और या किसी सरकारी दफ्तर में आप काम कर रहे हो, Maybe you're doing some housework. और या कोई घर का काम कर रहे हो, He gives you the ability. वो आपको योग्यताएं देता है। God gives you the ability. परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, He gives you the ability to get wealth और वो हमें संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो है सामर्थ देता है, because He's pleased with us. क्योंकि वो हमसे प्रसन्न होता है। So we should never say, hey, God always wants me to be poor or suffer. और तो हमें नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा गरीब बनाए रखना चाहता है या मुझे संघर्ष करते हुए रखना चाहता है। Right? We need to change our mind हमारे मनों को हमें बदलने की जरूरत है, because this is the truth of God's word. क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का सत्य है। Now you might have many questions और अब आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे based on how money is misused in the world. कि उसके आधार पर कि जिस प्रकार से जो है संसार में पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। Is money used for bad things? क्या पैसा जो है गलत बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Yes or no? हाँ या Yes. नहीं? In the world is used for bad things. संसार में जो है गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Is money used for bad things by Christians? क्या मसीहियों के द्वारा भी पैसा जो है गलत बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Yes. Is money used for bad things by those in ministry? और जो लोग सेवकाई में है क्या उनके द्वारा पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता है? Yes. यस। Right? So because money is used for bad things, क्योंकि पैसा जो है गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, sometimes we think money is bad. और इसी के कारण जो हम सोचते हैं कि पैसा है बेकार है, Because money is used for bad things, क्योंकि पैसा जो है गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, even by those in the church और उनके द्वारा भी जो कि कलीसिया में है or by ministers of God, और या परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, we think that we should not use money. और हम सोचते हैं कि हमें जो है धन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। And that's why we need to go back to God's word. और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में वापस जाना चाहिए God, what do you think about money? कि परमेश्वर आप क्या सोचते हैं धन के बारे में, What is on your heart आपके हृदय में क्या है। when it comes to wealth and riches? और जब ये धन और संपत्ति के बारे में बात होती है तो It says very clearly that it is He who gives us the power to get wealth. और यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप से बताता है कि जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता See, है। the previous verse talked about prosperity, और पिछला जो वचन था वो संपन्नता के बारे में उसने बात which means की। doing well in all areas. इसका मतलब हर एक क्षेत्र में जो अच्छा काम करना। Here specifically, it's talking about money, और यहाँ पे खास करके जो है धन के बारे में बात हो रही है, saying that He gives us the ability. वो हमें सामर्थ देता है। Is that good or bad? तो क्या ये अच्छा है और बुरा? It's good, वो अच्छा है। right? Now we might have many questions. और हो सकता है हमारे पास बहुत प्रश्न हो How much should I have? कि मेरे पास कितना होना चाहिए। We'll address those questions later. उन सारे प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। Is, how should I earn the money? कैसे जो है मुझे पैसे को कमाना चाहिए, All those questions we'll address it. वो सारे प्रश्न हम बाद में देखेंगे। Okay. Okay. Second thing that we see
और दूसरी चीज जो हम देखते हैं that there should be enough for the work of God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए वो पर्याप्त होना चाहिए, काफी होना चाहिए। Through money, God is glorified. और पैसों के द्वारा जो परमेश्वर को महिमा मिलती है। Secondly, we see that through money that there is enough for work of God's kingdom. और दूसरा हम देखते हैं कि पैसों के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य के काम के लिए वो पर्याप्त हो पाता In the है। Old Testament, पुराने नियम में they were building the tabernacle. और वो जो है तंबू को बना रहे थे। So who asked them to build a tabernacle? और तो किसने बोला था उस तंबू को बनाने के लिए? Right? Was it Moses? क्या वो मूसा था? Huh? Yes or no? हाँ या नहीं? No. God asked. परमेश्वर ने पूछा था। He said, "You build a tabernacle." परमेश्वर ने कहा कि तुम जो तंबू को बनाओ। Who gave the design for the tabernacle? किसने उस तंबू को बनाने के लिए वो डिजाइन दी? God did. परमेश्वर ने दी। Right? So it was his idea. तो वो परमेश्वर का विचार था। So how did they get enough material and money to build the tabernacle? तो कैसे उन्हें जो है पर्याप्त धन और चीजें जो मंदिर को बनाने, तंबू को बनाने के लिए जरूरत थी उसे मिले? God gave instructions. परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिए। If you look at Exodus 25, और यदि हम देखें निर्गमन okay, Exodus 25 chapter 25. और निर्गमन 25 अध्याय, Okay, please turn. You can use your Bible. अपनी बाइबलों का Bible. इस्तेमाल करके हम Open your निकाल Bible सकते if हैं। you have. Turn to Exodus, निर्गमन 25 अध्याय को खोले। right? 25 verse 1. 25 का पहला It says, वचन। Lord spoke to Moses. और वो कहता है यहोवा ने मूसा से कहा। He says, you tell the children of Israel और वो कहता है कि इस्राएलियों के लोगों को ये कहे to bring me an offering. और मेरे पास जो है भेंट लाने के लिए। So in what way should they bring the offering? और तो किस तरीके से जो है उन्हें भेंट लाना It चाहिए? says, from everyone who gives it willingly. और वो कहता है कि हर एक कोई जो उनकी इच्छा के अनुसार दे। Okay. And then he goes on to give instructions, what material should to use, how it should be used, all that. और फिर वो निर्देश देता है कि क्या चीजें लेके आनी है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, ये सब। And then in verse 8, और फिर 8वां it वचन, says, let them make me a sanctuary. और वो कहता है कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। And he says, I will give the pattern of the design of the tabernacle and all that. और वो कहता है कि जो डिजाइन है उन सबका नमूना और तरीका वो देगा। So what was the tabernacle used for? और तो जो तंबू था वो किस बात के लिए इस्तेमाल किया गया था? Anyone? कोई भी? What was the tabernacle used for? This side. और इस जगह से तंबू का इस्तेमाल जो है क्यों किया गया था? Was it a dining hall? क्या वो डाइनिंग हॉल था? Did people go in there because of the rain? और क्या लोग वहां पे जाते थे अंदर में This side. बारिश की वजह से? कोई भी. Answer. What was the tabernacle used for? Tabernacle. तंबू we use किस बात के लिए इस्तेमाल किया गया था? Huh? What is it? किसके लिए? तेज बोलो। To एक minute. One second. Yeah. male will have to get with God together, to get with God together. To fellowship or to Yeah, meet to them. fellowship. Okay. So that God would meet with them, right? Okay. What else? और क्या? Okay. To worship God, right? So आराधना। God gave this. He said, so that I will meet with you. तो परमेश्वर ने ये उसे दिया जिससे कि उसने कहा जिससे कि मैं तुम्हारे साथ मिल सकूं, So you can come and offer your sacrifice and praise and everything. जिससे कि तुम आ सकते हो और अपने जो बलिदान है और सारी चीजों को भेंट चढ़ा सको। Look at verse 8. 8वां वचन It देखें। says, so that I may dwell among them, और वो कहता है मैं उनके बीच निवास करूं, right? So that I can stay with them. जिससे कि मैं उनके साथ रह सकूं, I can be with them. मैं उनके साथ में बना रह So सकूं। that this tabernacle was a physical representation of God staying with his people. और ये तंबू जो था ये एक ही पृथ्वी के हिसाब से ये वो तरीका था कि परमेश्वर उनके साथ रह रहा है। So this was in fact a work of ministry. और वो जो सेवकाई के कार्य के लिए था। God would speak to his people. परमेश्वर अपने लोगों से बात करता, People would come और- and bring their offering to God. लोग आते थे अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लाते थे They would experience the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति को वो अनुभव करते थे। Okay. And how did they go about doing it? और कैसे वो इस कार्य को करते थे? They offered it willingly from their hearts. और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने हृदय से उसको भेंट देते थे। So today also, we use money
for ministry, तो आज भी जो हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं सेवकाई के लिए, right? For worship, for, so that we can gather comfortably and worship. आराधना के लिए, जब हम आते हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं आराधना करें, Right? Everything, every aspect of ministry. तो सेवकाई के हर एक स्थान, हर एक पहलू में, Use it for outreach, और यदि वो आउटरीच के लिए है, use it for good works. हमें वो भले काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, For all this, the money is used. इन सब के लिए जो धन का इस्तेमाल किया जाता But है। what does God say? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? You receive from everyone who is giving willingly. और तुम हर एक उनसे प्राप्त करो जो अपनी खुद की इच्छा से देते हैं। That means no forcing, इसका मतलब कोई दबाव नहीं, right? Don't force the people. और लोगों को दबाव ना दे। Right? From the very beginning, God is saying, let them offer willingly. और सबसे शुरुआत में ही परमेश्वर ने उन्हें कह दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें देने दें, This is what needs to be done. और यही ऐसा होना चाहिए। Now we are going to build something, or we're going to worship the Lord in this way. और हम जो है कुछ बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे इस तरीके से, And it is going to require some material and things like that. और उनमें जो है कुछ वस्तुओं की जरूरत होगी उस प्रकार से। But let the people offer willingly. लेकिन जो लोग हैं वो अपनी भेंट को अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें देने दें। Okay, very important thing. बहुत ही महत्वपूर्ण बात। Okay, then let's look at one more verse. और फिर एक और वचन देखेंगे, In Malachi chapter 3 and verse 9 and 10. और मलाकी 3 अध्याय वचन 9 से 12 में, Right? He says, verse 10, bring all the tithes into the storehouse, और उसका 10वां वचन जो कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, that there may be food in my house. कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। Now, who says that? और कौन ये कह रहा है? God lays down instruction. परमेश्वर जो है निर्देश को दे रहा Okay, है। what is a tithe? और तो जो है दशमांश क्या है? It's 1/10. और ये Right. जो हमारा हिस्सा होता है उसका 10वां अंश। Those days, even today, there are people are growing some grains and cattle and all that. और उन दिनों में जो है लोग अपनी फसलों को जो उगाते थे, And so the Lord is saying, bring 1/10 to the storehouse. और तो परमेश्वर कह रहा है कि उसका 10वां अंश जो है भंडार में लेके आए। So he's calling the temple his house. और तो जो है मंदिर को अपना भवन कह के कह रहा है। And he says, this is how the work of ministry should be done. और वो कह रहा है कि इस प्रकार से जो है सेवकाई का कार्य होना चाहिए। And he's saying, there will be blessing attached to it. और वो कह रहा है कि उससे जुड़ाव में जो आशीष रहेंगी। But something that we learn is that money should be used for God's work. और लेकिन कुछ ऐसा हम सीखते हैं वो ये है कि जो धन है परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, Right? And there should be enough of it for God's work. और परमेश्वर के कार्य के लिए वो पर्याप्त होना चाहिए। And so sometimes we think, okay, no, this is my hard-earned money. और तो कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरा पैसा है, How can I just give it away? कैसे मैं ऐसे ही दे सकता हूँ? How can I give it for, I don't know how they're going to use it. और मुझे नहीं पता वो कैसे इस्तेमाल करने वाले, कैसे मैं दे सकता हूँ? Valid questions. और ये बहुत ही सही प्रश्न है। But we go back and we see this is how God instituted it. लेकिन हम वापस जाते हैं और देखते कि इस प्रकार जो परमेश्वर ने इसको व्यवस्थित किया। Okay. Third thing, तीसरा, we see that, the right attitude about money is so that we may give to people who have a need. और सही रवैया पर धन के प्रति ये भी है कि हम उन लोगों को दे सकें जो जरूरतमंद हैं, They have a financial need. और उनकी जो आर्थिक जरूरतें हैं, Can we help? और वो क्या हम जो उनमें मदद कर सकते हैं? If we have, we can help. और यदि हमारे पास है तो हम मदद कर सकते हैं, Right? If we have enough, we can give enough. और यदि हमारे पास पर्याप्त है तो हम दे भी सकते हैं पर्याप्त। Look at this verse, Ephesians 4 and verse 28. और तो इफिसियों 4 वचन 28 देखें। Can somebody read it, please, in Hindi? क्या इसे कोई पढ़ सकता है हिंदी में? इफिसियों 4 28। Okay. What does it say? Ephesians 4 verse 28. इफिसियों 4 वचन 28। Okay. So it says that those who are stealing, don't steal. और कहता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, But you do the opposite of it. लेकिन उसका विपरीत में जो उसे करें। Stealing is taking something that does not belong to you. और चोरी करना वो कुछ ऐसा होता है कि हम वो ले रहे हैं जो हमारा नहीं है। Right? Look at that verse. उस वचन को It देखें। says, you're taking something which doesn't belong to you, आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जो आपका नहीं है, but now you work.
लेकिन अब जो है आप कार्य करें। And when you get something, और जब आपको कुछ मिलता है, आपके पास कुछ होता when है you get some money, और कुछ पैसा मिलता है, you give to the other person, आप दूसरे व्यक्तियों को दें। right? Just the opposite of stealing. और चोरी का जो विपरीत काम है वो करना है। Don't steal, चोरी ना करें, but you work लेकिन परिश्रम करें and give to others who have a need. और जिनको जरूरत हो उनको दें। So when we give to others, और जब हम दूसरों को देते हैं, that's a good use of money. वो पैसों का एक अच्छा इस्तेमाल होता है। That is what we see in scripture. और वो हम जो वचन में देखते हैं। Again, Galatians chapter 6 and verse 10. और गलातियों 6 अध्याय वचन 10, It says that when we have an opportunity to do good, अब वो कहता है कि इसलिए जहां तक अवसर मिले हम कि सबके साथ भलाई करें, let us help, आइए हम उनके साथ करें। right? And so we see this in many other verses. और हम ये देखते हैं और सारे वचनों में भी। And also the Lord Jesus, when he taught the people, और प्रभु यीशु ने भी जब वो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, he says that when you did to the least of these brethren, you did it for me. अब वो कहता है कि यदि तुमने किसी में से इन भाइयों के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया है। So these are some good attitudes to have about money. तो ये सारे एक सही रवैये हैं धन के प्रति। See, just like good attitudes, we also will have some wrong attitudes or bad attitudes. और सही रवैयों की तरह ही हमारे पास गलत रवैये भी होते हैं, बुरे रवैये। So what is that? तो वो क्या है? First thing is covetousness or greed. पहला है लालच या लोभ। What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means that, I want more of money. इसका मतलब है मैं ज्यादा धन को चाहता हूँ I want what others have also to be mine. और जो दूसरों के पास है उसे भी मैं मेरे पास होना चाहता हूँ। That's covetousness. तो वो है लालच। And not being satisfied, but wanting more and more and more. और जितना है उससे संतुष्ट ना रहना बल्कि और ज्यादा चाहना। It's easy to get into this, और trap. आसान है कि इस जाल में फंसना। right? So that's a wrong attitude. तो ये जो है गलत रवैया है। And the Bible warns us. और बाइबल जो हमें चेतावनी देती है। Let's look at Luke chapter 12 and verse 15. आइए देखिए लूका 12 अध्याय वचन 15। And he said to them, और- take heed, which means be careful and beware of covetousness. और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। For one's life does not consist in the abundance of things he possesses. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। Okay, so when we look at this verse, और जब हम इस वचन को देखते हैं Luke chapter 12, लूका 12 अध्याय, so what is the Lord saying in this? तो यहाँ पे प्रभु जो है क्या कह रहे हैं? Okay, so he's teaching about money अब वो है धन के बारे में शिक्षा दे रहे हैं and he shares a parable और वो जो एक दृष्टांत को वहाँ पे साझा करते हैं and he's warning the people. और वो लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। Like in this parable, he's talking about a rich man. और इस जो दृष्टांत है उसमें एक धनवान व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। And he's talking about the rich man and he's saying, and he's teaching them, that our money or covetousness is not good. और वो इन्हें ये सिखा रहा है इस व्यक्ति के बारे, धनवान व्यक्ति की बात बता के कह रहा है कि लोभ जो है अच्छी बात नहीं है। Because your life is much more valuable क्यों? than the money you have. क्योंकि जो पैसा तुम्हारे पास है उससे कई ज्यादा गुना बढ़ के तुम्हारा जीवन कीमती है। He doesn't say money is not useful. और उसने ये नहीं कहा कि पैसा लाभदायक नहीं है। In fact, if you look at the book of Proverbs, और यदि आप नीति वचन की पुस्तक को देखें, it talks a lot about how we need to do well, work hard and earn. और वो बहुत ज्यादा जो इस बारे में बात करता है कि कैसे हमें अच्छे से परिश्रम करना चाहिए और कमाना चाहिए। Right? How many of you read Proverbs? आप में से कितने लोगों ने नीति वचन पढ़ा हुआ है? Does it talk about money? क्या वो धन के बारे में बात करता है? Yes. It talks about working hard. और वो कठिन परिश्रम करने के बारे में बात करता Right? है It talks about all those things. और वो सारी चीजों के बारे में So बात the करता Bible है। is not against working hard in order to earn. और तो जो बाइबल है हम कठिन परिश्रम करें और कमाएं उसके खिलाफ में नहीं है। But the Lord is warning us about how we need to treat money. लेकिन परमेश्वर जो हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमें कैसे जो हमारे पैसों को संभालना है। Look at this verse, 1 Timothy chapter 6 and verse 9. और पहला तिमुथियुस 6 अध्याय वचन 9 Okay. देखें। Now those who desire to be rich fall into temptation and a snare. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ बातों में फंसते हैं। Okay, and it says, and into many foolish and harmful lusts,
which drown men in destruction and perdition. और ये कहता है कि बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। Okay. So then we ask this question. तब हम ये प्रश्न पूछते हैं Lord, right now I'm poor. कि परमेश्वर इस समय जो है मैं निर्धन हूँ Right? I don't have much money. और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। Is it wrong to desire to have money? तो पैसों की इच्छा करना क्या गलत है? Correct, no? सही बात है। Right? Is it wrong to have such a desire? और ऐसी इच्छा रखना गलत बात है क्या? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Let's say you're living in a rented house. और ऐसे बोले, मान लीजिए कि आप जो है किराए के घर में रह रहे हैं। Right? Is it okay to pray and ask the Lord, Lord, I want to have more money? और तो क्या इस प्रार्थना को करना सही है कि परमेश्वर जी मैं और पैसा चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, so that I can build a house or buy a house? जिससे कि मैं घर को खरीद सकूं, बना सकूं? Is it okay to pray like that? क्या इस प्रकार की प्रार्थना करना सही है? Yes. So there is a desire. तो इच्छा है यहाँ पे। What is the desire? तो इच्छा क्या है? To become rich. और यहाँ पे है धनी बनने के लिए। Now scripture here says, those who desire to be rich fall into temptation. और यहाँ पे वचन कहता है कि जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे में फंसते हैं। So how do we understand this? तो हम इसे कैसे समझेंगे? Okay, let's look at that verse again. 1 Timothy 6 and verse 9. तो आइए इस वचन को फिर से देखें। पहला तिमुथी 6 अध्याय वचन 9 It says, those who desire to be rich fall into temptation. कि पर जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा फंदे में फंसते हैं। Verse 10 10वां वचन, says, love of money is the root of all kinds of evil. क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, For which some have strayed away from the faith. जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों जो है विश्वास से भटक गए हैं। Right? So that is the problem. तो ये है परेशानी यहाँ पे। Because of the love for money, और जो पैसों का प्रेम है उसके लिए, this love of money sometimes can make us stray away from the faith. और जो पैसों का जो प्रेम है वो हमें कई बार जो हमारे विश्वास से अलग कर सकता है, Because of greed. और है लोभ के कारण। And it says here, they pierce themselves through with many sorrows. और कहता है कि अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है उन्होंने। Now that's the problem. तो अब ये परेशानी है। The love of money or desire to get rich, और धनी होने की इच्छा और धन का प्रेम making you to go away from God. परमेश्वर से हमें दूर लेके जा रहा है। Because when you are with God, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ हैं, you have peace, you have contentment, आपके पास शांति है, संतुष्टता है, and you're living right. और आप सही तरीके से जी रहे हैं। But you're straying away from God here, लेकिन आप यहाँ पे जो है परमेश्वर से दूर हो गए हैं, and that becomes a problem. वो परेशानी बन जाती है। Right? And that is why this verse says, those who desire, the desire for riches is more than the desire for God. और इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि जो इच्छा रखते हैं, जो यहाँ पे इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा से ज्यादा है। When our desire for something is more than our desire for God, और जो हमारी कुछ इच्छा है जो परमेश्वर के प्रति इच्छा है उससे ज्यादा बन जाती है, what happens? तो क्या होता है? We follow that. तो हम उसी को पीछे चलते हैं। Right? When your desire for something, और it could be, it could be anything, right? और यदि आपकी इच्छा है किसी भी बात के लिए हो सकती है, When it's more than your desire for God, जब वो इच्छा ज्यादा है परमेश्वर के लिए जो इच्छा है उससे, we will act on that desire. तो हम जो उस इच्छा के कार्य उसमें होकर कार्य करेंगे, And we will stray away from God. और हम जो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। Because God is not first place in our lives. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे नहीं है। When God is not first place in our lives, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान में नहीं होता है, our priorities change. हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Yeah. When our priorities change, जो हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, our choices and our हमारे- decisions change. हमारे चुनाव और हमारे जो निर्णय होते हैं वो बदलते हैं। Okay. Okay. We'll take a break and then we'll come back. ब्रेक लेके वापस आएंगे।